this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आपने जैसे कि मेरा देखा होगा कि मेरा पीसी आ चुका है, बट ये बहुत पहले ही आ चुका था, अराउंड 2 मंथ्स पहले ही आ चुका है। बट ये वीडियो मैं बाद में डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा रूम सेटिंग और घर का थोड़ा सा डायरेक्शंस वगैरह, मतलब कि रूम का थोड़ा सा डायरेक्शंस वगैरह मैं चेंज कर रहा था। इस चक्कर में आपको थोड़ा सा वीडियो जो है लेट पहुँचा मेरा, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। एंड अब की बार आपको डेली मेरी लाइव स्ट्रीम दिखेगी, वीडियोस भी दिखेंगी डेली के डेली। तो आप ऐसा कि आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे पीसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स और क्या क्या डले हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर। सो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरा AMD Ryzen 3600 जिसके अंदर 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है ये। सो मार्केट प्राइस पर ये मुझे पड़ा 14,576 रुपीज़ का। तो आप मार्केट प्राइस में जाके पता करना, और हर चीज़ आपको स्क्रीन पर मेरी एग्जैक्ट विद GST के साथ, आपको टैक्सेस के साथ आपको दिख जाएगा। तो कितना अमाउंट मुझे पड़ा है एग्जैक्ट, एंड सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। सो गाइस, आप देख लेना जाकर, एंड वहाँ पर आपको परचेज़ करना चाहते हो तो आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो। और अगर आपको हेल्प चाहिए कि क्या आपका पीसी कितना बजट है, कितने बजट के अंदर आपको वीडियो चाहिए, वो भी मैं आपको बनाकर एक वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। सो प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे बताएं ना आपको कौन कौन से कंपोनेंट, अगर आपने कंपोनेंट देख रखे हैं तो मुझे बता देना।
एंड अगर आपने नहीं दे रखे तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो डिस्कॉर्ड पर, और मुझे डीएम कर सकते हो, या मुझे इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। तो गाइस दूसरी चीज़, मैंने ये मदरबोर्ड लिया है। तो मदरबोर्ड जो है मेरा MSI का है, B450M प्रो VDH मैक्स है ये। सो इसके अंदर मुझे एक चीज़ का खासियत अच्छी लगी, क्योंकि इसका जो है बायोस अपडेट आया था, जो कि AMD 5000 सीरीज़ के भी प्रोसेसर अटैच हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने फिर ये ले लिया था, और ये मुझे मार्केट प्राइस पड़ा 6355 रुपीज़ का। सो आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बहुत बढ़िया है गेमिंग एडिटिंग के लिए मदरबोर्ड सबसे बेस्ट है ये प्रो सीरीज़ का। एंड मैंने रैम जो यूज़ किया है वो है क्रॉसहेयर का RGB मैंने यूज़ की है वेंजस का। सो ये जो है मेरा 3600 मेगाहर्ट्ज़ का है, जो कि आपके एडिटिंग के परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है एंड गेमिंग के लिए भी बेस्ट है। तो ये मैंने ड्यूल पैक लिया है, तो मेरे 16GB/2 है। तो ये जो मुझे मार्केट प्राइस पड़ा ये 14,406 रुपीज़ का, और ये आपको ऑनलाइन पड़ेगा अप्रॉक्स 35,000 रुपीज़ के आसपास। तो प्लीज़ कृपया कर प्लीज़ ये है कि आप मुझे बता देना, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बोला था कि आपको कुछ भी चीज़ की जो हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपको बेशक आपको हेल्प करूँगा मैं। एंड पावर सप्लाई मैंने ये लगाई है क्रॉसहेयर का 550 वाट, 80 ब्रॉन्ज प्लस सर्टिफाइड है ये, 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। एंड ये मुझे अप्रॉक्स पड़ा है, ये मुझे पावर सप्लाई पड़ी है 3,389 रुपीज़ का पड़ा है ये। सो एंड सेकंड जो मैंने कैबिनेट जो यूज़ किया है वो किया है एनटेक का NX210 RGB है, जिसके अंदर प्री इंस्टॉल RGB फैंस 4 मिलते हैं। फ्रंट पैनल जो है आपका ग्लास मिलता है। सो उस वक्त ये मार्केट के अंदर यही अवेलेबल था, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर मैं थोड़ा सा डर रहा था कि अगर मैं मंगवाऊँ तो ये RGB वाला टूट ना जाए, तो इस वजह से। सो ये है, और ये मुझे अराउंड पड़ा था 4,576 रुपीज़ का, जो कि अभी मार्केट में थोड़ा सा लो हो चुका है ऑनलाइन में, और अभी भी आपको लो में ही मिल जाएगा। ये है कि आपको अराउंड 3,000 समथिंग का मिल जाएगा ये। एंड चलते हैं अब हम अपने तीसरे प्रोडक्ट पर, जो कि सबकी शान, सबका स्ट्रीमर्स और सबके उसके लिए आपको राहत थोड़ी सी मिली होगी देखकर कि ये आपको थोड़ा सा राहत मिला होगा। सो मैंने लगाया है Inno3D का RTX 360। इसके अंदर 2 फ़ैन है, ऊपर से ओवरक्लॉक भी है, एंड गेमिंग और एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। एंड आपको जो मुझे जो ये पड़ा है 59,000 रुपीज़ का पड़ा मार्केट में। अभी इसके अराउंड 81 से अबव चल रही है, 81,000 से अबव चल रही है। तो गाइज़ अब आप देख लेना कैसे किस तरीके से आपको प्राइसिंग वगैरह जो है थोड़ा सा अपने लोकल मार्केट में देख लेना कि आपको कितने का पड़ता है। एंड मैंने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है SSD कार्ड NVMe M.2 500 GB इसके अंदर है। एंड इसके अंदर जो है आपको एक चीज़ बता देता हूँ, SSD से जो नॉर्मल SSD है और NVMe के अंदर क्या फ़र्क है। वो ये फ़र्क है कि जो SSD है वो 16 GB रीड एंड राइट प्रोसेसर होता है, उसका रीड एंड राइट रहता है। इसके अंदर 32 GB रीड एंड राइट रहता है। सो इस वजह से ये मैंने लगाया। एंड
ये मुझे मार्केट में अराउंड पड़ा था 4915 रुपीज़ का। तो आप एक बार देख लेना मार्केट में आपको कितना सस्ता पड़ता है, क्या पड़ता है। एंड मैंने जो हार्ड डिस्क लगाई है वो पर्पल हार्ड डिस्क लगाई हुई है, क्योंकि पर्पल हार्ड डिस्क इस वजह से लगाई थी क्योंकि मुझे आरपीएम नहीं मिल रहा था उतना जितना मुझे चाहिए है। 5400 आरपीएम नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये लिया। तो और स्टॉक में भी कमी थी मार्केट के अंदर, लॉकडाउन के बाद से वैसे भी स्टॉक की कमी बहुत हो रही है। एंड ये मुझे अराउंड पड़ा था 3559 रुपीज़ का पड़ा था, जो कि आपको ये करीब करीब मिल जाएगा आपको। देखोगे तो ब्लू हार्ड डिस्क और पर्पल हार्ड डिस्क में सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क था, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, अंतर कुछ नहीं था। 500 400 300 रुपये का फ़र्क आएगा अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो एंड सेकंड, ये मेरे पास हार्ड लैपटॉप की हार्ड डिस्क एक अलग से रखी हुई थी। इसको एक्सटर्नल बनाने से अच्छा मैंने इसको इनबिल्ट कर दिया ताकि मैं इसका यूजेस कर सकूं। और दूसरी चीज़ कि ये मेरे पास पड़ा हुआ था, इसका अराउंड इतने का ही है मार्केट में, 32 GB का। सो ये एक तरीके से आप SSD की तरह यूज़ कर सकते हो, तो इस वजह से मैंने इसको SSD के स्लॉट में लगा कर यूज़ कर रहा हूँ, और साइज़ भी उतना ही होता है इसका। एंड सेकेंड, मेरे पास ये था, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, 2000 रुपीज़ का पड़ा था ये, तब लॉकडाउन से पहले का था ये। और ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था, करीबी अराउंड मुझे 1 ईयर हो चुका है मोस्टली। तो ये मैं यूज़ कर रहा था, तो मेरे पास कीबोर्ड नहीं था, मैं एक्चुअली लैपटॉप पे यूज़ कर रहा था, तो मेरा पुराना लैपटॉप था। एंड कीबोर्ड मैंने ये परचेज़ किया, तो ये मुझे ये मैंने परचेज़ किया था कीबोर्ड मैंने 1186 रुपीज़ का परचेज़ किया था। कॉम्बो में था, इसका माउस एज इट इज़ मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसको एक बार भी यूज़ नहीं किया, बस हाँ चला के देखा था कि वर्किंग में है या नहीं है, बस बाकी सब। और ये जो है देखोगे कीबोर्ड को तो ये RGB कीबोर्ड है, बट मैकेनिकल नहीं है, बट हाँ मेरे लिए अभी काम करने के लिए लायक है। तो एंड मेरे पास एक और हार्ड डिस्क और एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी जो कि 160 GB था, तो वो भी मैंने अटैच कर दिया। उसका आपको ये अराउंड 1200 समथिंग के आसपास आपको पड़ जाएगा ये। सो एंड मेरे पास ये एक मॉनिटर था 19 इंचज़ का, जो कि डेल का है, जिसका मेरा सेकंड मॉनिटर इधर की तरफ है, ठीक है। एंड मैं उस पर इस वजह से ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये 60 हर्ट्ज़ का है एंड HD है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सेकंड मॉनिटर मेरा चैट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो एंड जिस पे मैं फ्रंट मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ उस पर मेरा ये 32 GB का मॉनिटर नहीं है, ये एक्चुअली 32 इंचज़ का ये मेरा टीवी है, स्मार्ट टीवी है, जिसके अंदर मैंने, ये बहुत पुराना है, ये मेरा अप्रॉक्स आया है ये मेरे पास 2010 में, हाँ 2010 में आया था ये मेरे पास टीवी, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये LCD है, और मेरा जो सेकंड मॉनिटर जो है वो भी मेरा LCD है एक तरीके से। तो हाँ, ये मुझे अराउंड पड़ा था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, बट याद नहीं है। तो हाँ, और ये मैंने मंगवाया था 200 रुपीज़ का मंगवाया था, 100 रुपीज़ बढ़ गए हैं सेकंड लॉकडाउन के बाद ही। तो ये मुझे पड़ा था, ये 200 रुपीज़ का पड़ा था, और ये मैं रिंग लाइट की तरह यूज़ कर रहा हूँ, बट इसकी हीट बहुत बहुत तेज़ है और लाइट भी बहुत तेज़ है इसकी। सो
और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास ट्राईपॉड था जो कि मैंने 100 रुपीज़ का ख़रीदा था लोकल मार्केट से ही। सो हाँ, और एक और चीज़ ये मैंने लगाया है, चिपट्रॉनिक्स का है HX100 RGB, ये मैंने कूलिंग फैन के लिए लगाया। तो गाइस यही मेरे पीसी के अंदर कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। एंड जिसको भी हेल्प चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसको भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे आकर कनेक्ट कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पर, या मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ मुझे बजट की ज़रूरत है, या मेरे इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं कि आपको मैं सीधा सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकूं, एंड आपको सॉल्यूशन भी बता सकूं कि आप इस तरीके से ऐसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं चलता हूं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टेक केयर, शब्बा खैर, सायोनारा एंड खुदा हाफिज़।